بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایٹین ورلڈ پر سیزن 5 کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ سیزن 5 کے آغاز میں 1909 عیسوی کا سرکجی ریلوے اسٹیشن دکھایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے سلطان عبدالحمید کو ریلوے اسٹیشن کے اندر بچے کے ساتھ دکھایا جاتا ہے۔ سلطان حضرت اسٹیشن سے ہوتے ہوئے پلیٹ فارم کے دروازے پر پہنچتے ہیں۔ سلطان جیسے ہی پلیٹ فارم کی جانب بڑھتے ہیں تو ٹرین وہاں آ کر رکتی ہے اور اس وقت بہت زیادہ دھواں بھر جاتا ہے۔ اس کے بعد سلطان حضرت کو ٹرین کے ڈبے میں بیٹھا دکھایا جاتا ہے۔ نوجوان ٹرین کے ڈبے میں داخل ہوتا ہے اور سلطان سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ کی کوئی خواہش ہے جناب؟ سلطان فرماتے ہیں بیٹا میں آپ کو زیادہ تنگ نہیں کروں گا۔ پھر سلطان اپنی جیب سے ایک سکہ نکالتے ہیں، نوجوان کو سکہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کیا مجھے کیمبر کا پانی خرید کر دے سکتے ہو؟ میں ایک آخری بار پایا تخت کا پانی پینا چاہتا ہوں۔ سلطان اپنے ساتھ بیٹھے بچے کو پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں، پھر نوجوان پانی کی بوتل لے آتا ہے۔ سلطان فرماتے ہیں بیٹے اللہ آپ سے راضی ہو، آؤ بیٹھو یہاں۔ اس کے بعد ٹرین ہارن بجاتی ہے اور چل پڑتی ہے۔ پھر سلطان فرماتے ہیں نوجوان سلطان عثمان دوم جینیسری کی بغاوت کی وجہ سے تخت سے اتارے گئے اور ملک بدر ہو گئے تھے۔ انہیں محل سے لے جایا گیا اور یدیکول کے زندان میں قید ہوئے۔ ماضی میں انہوں نے جامعہ آیا صوفیہ کے پیچھے ایک چشمہ بنایا تھا۔ جب انہیں سزائے موت دی جا رہی تھی تو انہیں پیاس محسوس ہوئی۔ وہ اس چشمے کا پانی پینا چاہتے تھے۔ غداروں نے انہیں اس کی اجازت نہیں دی۔ انہوں نے یدیکول کے قید خانے میں نوجوان عثمان دوم کو قتل کر دیا۔ مرنے سے پہلے وہ پانی تک پی نہ سکے۔ اس عظیم انسان نے چشموں کے سمندر سے پانی کا ایک قطرہ چاہا۔ انہوں نے خنجر کا اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ یہ نہیں پی سکتے ہیں۔ نوجوان کہتا کہ وہ اس چشمے کے پانی کی ایک بوند چاہتے تھے۔ خنجر پر اپنے آنسو کو گراتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پانی یہاں ہے۔ سلطان فرماتے ہیں میں نے اپنے دوستوں کو خنجر کے بغیر نہیں دیکھا بیٹے۔ پھر چھوٹے معصوم بچے کو دکھایا جاتا ہے جو باہر کے نظارے سے لطف اندوز ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد منظر پلٹتا ہے، سلطان حضرت سلانیک کے محل پہنچتے ہیں۔ سپاہی وہاں پر انجان بنے رہتے ہیں۔ سلطان فرماتے ہیں یا اللہ میرے وطن کی حفاظت فرما۔ وہاں کھڑا نوجوان کہتا کہ سلانیک میں واقع الاطینی حویلی کو آپ کی جلا وطنی کی جگہ کے طور پر منتخب کیا گیا ہے آفندی۔ پھر سلطان حضرت بسم اللہ پڑھ کر حویلی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ان کے پیچھے بہت سی خواتین بچے بھی دکھائے جاتے ہیں۔ پھر جو خواتین سلطان کے پیچھے آ رہی ہوتی ہیں، آگے چلنے والا نوجوان کہتا کہ آپ تھک گئی ہوں گی خاتون، اس سانپ کے بچے کو مجھے دے دیں۔ پھر سلطان حضرت غصے سے پیچھے دیکھتے ہیں اور اپنی جیب سے پستول نکالنے ہی والے ہوتے ہیں، لیکن پھر دوسرا نوجوان بچے کو پیار سے لے لیتا ہے۔ سلطان حضرت کافی بے بس دکھائی دیتے ہیں۔ پھر وہ ایک کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سلطان وہاں جا کر نقشوں کو دیکھتے ہیں اور مختلف تصاویر کو بھی دیکھتے ہیں۔ اس نقشے کے ساتھ ایک کاغذ پڑا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ سلطان اسے کھول کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہوتا ہے کہ ہم میں سے ایک کو بندوق سے اپنی طاقت ملی اور ہم میں سے ایک وکیل تھا۔ ہم میں سے ایک نے آپ کو اپنے قلم سے مارا اور ایک نے اپنے پیسوں سے ایک وقت حاصل کر رہا تھا اور ایک طاقت کے ساتھ جو اس نے بارودی سرنگوں سے حاصل کی، اور میں نے آپ کو پاشا کے نشان سے شکست دی۔ آخر کار آپ ہار گئے۔ اس دن میں نے آپ کو جلا وطن کرنے کا فیصلہ کیا جس دن ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ آپ نے جو نشان مجھے دیا وہی اصل طاقت کا منبع ہے۔ پاشا کے نشان کے پیچھے کون تھا آپ جان جائیں گے۔ جب آپ اس پاشا کے تمغے کو دیکھیں گے تو جان جائیں گے میں کون ہوں۔ سلطان حضرت دیوار پر لگے تمغے اور گھڑی کو دیکھتے ہیں۔ پھر سلطان تمغے کو اتار کر اسے پیچھے کی جانب سے دیکھتے ہیں۔ پھر وہی نوجوان سلطان کے پاس آ جاتا ہے۔ سلطان فرماتے ہیں یہ بیٹا آفندی ہے، انہوں نے میرا تخت لے کر محکوم بنا دیا تاکہ وہ یہ نقشہ بنا سکیں۔ ریاست کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ میں نے انہیں اپنی زمین کا ایک ٹکڑا بھی نہ دیا، انکار کر دیا۔ میں نے اپنی ریاست کی دن رات 33 سال تک خدمت کی۔ سب سے بہتر جو میں کر سکتا تھا وہ کیا۔ میں نے اپنا حلف پورا کیا۔ میرے خیالات اور خدشات ہمیشہ اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے رہے ہیں۔ میں نے یونانیوں کو شکست دی،
पूरी दुनिया के खिलाफ मैं मजबूती और एजाज के साथ खड़ा रहा। मैंने कभी किसी बेगुनाह को तकलीफ नहीं पहुंचाई। मैं अपने दुश्मनों के साथ भी इंसाफ करता था, लेकिन मेरे प्यारे बेटे, किस्मत मुझे यहाँ ले आई। जिन लोगों ने मुझे गिरा दिया वो एक ही माँ के बच्चे हैं, लेकिन इनके वालिद मुख्तलिफ से हैं। अब ये वाज़े नहीं हो सकता कि हमारी रियासत का मालिक कौन है। अल्लाह हमारे मुस्तकबिल को खुशहाली अता करे। फिर वही छोटा मासूम बच्चा सुल्तान के पास पहुंच जाता है। वो कहता है कि मुझे सर्दी लग रही है बाबा। सुल्तान फरमाते हैं, क्या आपको सर्दी लग रही है बेटे? फिर सुल्तान नौजवान से कहते हैं कि हमारे पास कोई कंबल है। पीछे खड़ी खातून कहती है कि नहीं आफंदी। फिर सुल्तान बच्चे को उठाकर अपनी गोद में बिठाते हैं और सोफे पर पड़ी चादर लेकर ये फरमाते हैं कि आइए आपको ढांपते हैं बेटे। मतलब ये कि सुल्तान के पास सर्दी से बचने के लिए भी कोई कपड़ा नहीं था और वो मासूम बच्चों और अपने घर वालों को लेकर दरबदर हो गए। नाजरीन, चलिए अब असल कहानी शुरू होती है। पाया तख्त में सुबह का मंजर दिखाया जाता है। तहसीन पाशा, सलीम आफंदी, अहमद जलालुद्दीन और जुल्फू इस्माइल पाशा सुल्तान का इंतजार कर रहे होते हैं। जुल्फू कहते हैं कि ये पुराने दौर के इख्तिताम की आवाज है। ये पीतल का बैंड कासिद है कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। फिर सुल्तान के मजीद वुज़रा को भी दिखाया जाता है। जुल्फू मजीद कहते हैं कि वो बहुत सारी मुखालिफ आवाजें होंगी। हर नया दौर अपने साथ मसाइल लाता है, ये आम बात है। अहम चीज रियासत का कायम रहना है। अहमद जलालुद्दीन कहते हैं कि कोई भी तकरीब तैयार करना ठीक है, अहम बात यह है कि रियासत और इसका नज़्मो ज़ब्त कायम रहे। फिर एक नए सुल्तान को अंदर आते दिखाया जाता है। सिपाही मुबारक हो, हमारी रियासत कायम रहे के नारे बुलंद करते हैं। वो सुल्तान सीधा जाकर अपनी मसनद पर बैठ जाते हैं। तहसीन सबसे पहले सुल्तान को एक तोहफा देते हैं और कहते हैं कि हमारी रियासत हमेशा कायम रहे। फिर यही बूढ़ा शख्स असल में औल-नून फरीद पाशा के नाम से पुकारा जाता है और वो सीधा सुल्तान के दरबार में पहुंचता है। सुल्तान हजरत फरमाते हैं कि औल-नून फरीद पाशा वजीर आजम का मनसब मुबारक हो। औल-नून कहता है कि मेरे बादशाह, मुल्क और अवाम आपकी है। सुल्तान फरमाते हैं मुल्क अल्लाह की मलकियत है और अवाम तारीख से ताल्लुक रखते हैं। औल-नून कहता है कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये फर्ज सौंपा। मैं आपकी खिदमत में रियासत के वफादार की हैसियत से रहूंगा। मैं अपना हल्फ पूरा करूंगा और हमेशा वफादार रहूंगा। सुल्तान फरमाते हैं इंशाअल्लाह आपको जो सदर आजम की मोहर अता की है इसका गलत इस्तेमाल न करना और इसे रियासत के खिलाफ बुरे अजाइम के लिए इस्तेमाल हरगिज न करना। औल-नून कहता है कि इंशाअल्लाह सुल्तान। फिर सुल्तान फरमाते हैं क्या आप जो काबीना कायम करने जा रहे थे इसका फैसला कर लिया? औल-नून कहते कि क्या मैं इसका फैसला करूंगा सुल्तान? क्या आप रियासत पे अपने आबाओ अजदाद की तरह से हुकूमत नहीं करते? कानून, इस्लाहात, मशावरत ये वो चीजें हैं जो हजूर की अजमत को नुकसान पहुंचा रही हैं। सुल्तान फरमाते हैं नहीं पाशा, मशावरत सुन्नत है, मेरे अल्फाज कानून नहीं है। इस रियासत का एक तरीका और निजाम है, इसमें कानून और निजाम मौजूद है। आपको और मुझे इनकी तामील करने की जरूरत है। आप वुज़रा का इंतखाब करेंगे और मैं सिर्फ शेखुल इस्लाम का इंतखाब करूंगा, वजीर दिफा, वजीर कानून और नाज़मीन का। वजीर आजम कहता है कि मेरे सुल्तान, रियासत घर पे आपकी हुक्मरानी है। मैं वुज़रा के इंतखाब के लिए काम शुरू करता हूँ क्योंकि आप खुली मुशावरत कर रहे हैं सुल्तान। मुझे वजीर कानून के लिए मशवरे मिल सकते हैं। सुल्तान फरमाते हैं मैं आपका मशवरा लूंगा पाशा। आप जिन वुज़रा का इंतखाब करते हैं इनमें वफादारी की खसूसियत होनी चाहिए। काबिलियत हो सकती है लेकिन अगर वफादारी न हो वो इस काबिलियत को अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आप इनमें से एक नहीं होंगे पाशा। दूसरी तरफ महमूद पाशा को दिखाया जाता है। वो इत्र की बोतल खोलकर उसके ढक्कन से कागज निकालते हैं। लिखा होता है कि मेरे प्यारे बाबा, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आप बहुत सारी बुराइयों से बच गए हैं, आप भी इस पर काबू पालेंगे। मेरी बातें बंदरगाह पे अधूरी रह गई थी बाबा, अब हम सब आजादी के करीब हैं। हमारा मंसूबा और आप जैसे मजबूत पाशा की वफादारी हमारे लिए आजादी लाएगी। हमारी तंजीम इसको हासिल करेगी। मेरे वालिद, इस मुकद्दस तंजीम में आपका भी एक मकाम होगा, चाहे आप ये चाहते हैं या नहीं। आपके दिल में आजादी का प्यार रहे
और आपकी रगों में इस आज़ादी के लिए लड़ने की ताकत है। मैं सिर्फ इस सूरत हाल की इतला दे रहा हूँ। आपका जल्द सेहतयाब होना मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है बाबा, क्योंकि हम आज़ादी की तरफ भाग रहे हैं। हम आपका इंतजार कर रहे हैं। जब आप दोबारा सेहतमंद हो जाएंगे तो मैं आपसे मिलने की उम्मीद करता हूँ। फिर महमूद पाशा इस कागज को आग लगाते दिखाई देते हैं। ये कागज सबाहुद्दीन की जानिब से मौसूल होता है। फिर एक नौजवान वहाँ दौड़ा चला आता है। महमूद कहते हैं कि क्या हुआ, अभी रात का खाने का वक्त तो है नहीं, तुम इतनी उजलत में क्यों हो बेटे? रात के खाने की बात करने पर मुझे फौरन भूख लग गई। क्या हमें रात के खाने के औकात को पहले घंटे में मुंतकिल करना चाहिए? नौजवान कहता कि मैं कुछ खबरें लाया हूँ। फरीद पाशा वजीर आजम बन गए हैं। महमूद कहते हैं कि फरीद पाशा वजीर आजम बन गए क्या? मुझे महल ले जाओ, मुझे जल्दी महल लेकर चलो। महमूद पाशा व्हील चेयर पर बैठे होते हैं। नौजवान जल्दी से व्हील चेयर को घसीटते हुए ले जाता है। तहसीन पाशा सुल्तान हजरत के सामने हाजिर होते हैं। वो बताते हैं सफीर आ गए हैं, वो मर्जा डी के फैसले सुनाने आए हैं। सुल्तान एक कागज तहसीन को दे देते हैं और फरमाते हैं ये मरसतीक में होने वाले फैसले हैं पाशा। तहसीन कहते हैं क्या हमें मालूमात मिल गई है सुल्तान? सुल्तान फरमाते हैं हर तरह की मालूमात, जब तक हम इन्हें नजरअंदाज नहीं करते पाशा, हम तीसरा फैसला नहीं जान सके। इंशाअल्लाह हम जान जाएंगे। तहसीन कहते हैं सुल्तान क्या हमें सफीर से मिलना चाहिए? सुल्तान फरमाते हैं नहीं, हम इनकी बातें रास्ते में सुनेंगे। तहसीन कहते हैं सुल्तान हम कहाँ जा रहे हैं? सुल्तान फरमाते हैं मुझे नहीं मालूम पाशा, सफीर बताएंगे कि हमने कहाँ जाना है। फिर इतने में वहाँ महमूद पाशा महल की राहदारी में पहुँच जाते हैं। सुल्तान हजरत भी दरबार से बाहर तशरीफ लाते हैं। महमूद कहते हैं कि मैं घर पर गमज़दा हो रहा था, मैं माजूर हूँ, लेकिन मैं अभी मुर्दा नहीं हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि मैं बोल सकता हूँ। मेरे हाथ भी ठीक हैं सुल्तान, और हमें सदर आजम का खैर मकदम करना चाहिए। सुल्तान फरमाते हैं आप अपनी सेहत की देखभाल करें, ठीक है? जैसा कि डॉक्टरों ने कहा कि आपको दिल का दौरा पड़ने की वजह से ज्यादा खाना था। सीन फ्लैशबैक में जाता है। महमूद सोचते हैं जहां सबाहुद्दीन बंदरगाह पर कहता है इस मुल्क के बच्चे ही इस मुल्क को आजाद करेंगे और हम पाया तख्त के टुकड़े कर देंगे। फिर वो अपने ही बाप को नीचे फेंक देता है और कहता कि मदद करें लोगों, आपके पाशा को दिल का दौरा पड़ा है। सीन फ्लैशबैक से वापस आता है। महमूद कहते हैं कि जी सुल्तान, ये बहुत ज्यादा खाने की वजह से था। फिर सुल्तान अहमद जलालुद्दीन से पूछते हैं कि आपका जख्म कैसा है। सीन एक मर्तबा फिर से फ्लैशबैक में जाता है जहां अहमद जलालुद्दीन विंडो का पर्दा खींच लेते हैं। एक गोली लगती है, छड़ी और दस्ताने नीचे गिर जाते हैं। सीन फ्लैशबैक से वापस आता है। अहमद कहते हैं कि मैं ठीक हूँ सुल्तान, लेकिन इसने एक निशान छोड़ा। सुल्तान फरमाते हैं कि पाशा किसी नसीहत से जख्म का निशान बेहतर है। क्या हम खलील खालिद साहब के बारे में कुछ जानते हैं? अहमद जलालुद्दीन कहते हैं कि सुल्तान तातार और खलील खालिद पीटर्सबर्ग पहुंच चुके हैं। वो आपके अहकामात पर अमल करने के लिए तैयार हैं। सुल्तान फरमाते हैं अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए। फिर अहमद कहते हैं क्या सुल्तान मंजिल मकसूद करीब है? सुल्तान फरमाते हैं सफीर मंजिल का बताएंगे पाशा। इसके बाद सुल्तान हजरत महल से बाहर आ जाते हैं। रूसी सफीर कहता है कि आलिजा हजरत, हम मरसदीक में किए गए फैसलों के बारे में बात करना चाहते थे। सुल्तान फरमाते हैं कि हम रास्ते में बात करते हुए अपनी मंजिल तक जाएंगे। रूसी सफीर के साथ एक और शख्स भी मौजूद होता है। वो कहता है कि मंजिल कहाँ है? सुल्तान फरमाते हैं आप इसका तयन करेंगे। फिर वो सब लोग आगे बढ़ जाते हैं। फिर सुल्तान हजरत सफीरों को लेकर महल के बाग से गुजर रहे होते हैं। सुल्तान फरमाते हैं कि हम पहले दो फैसलों के बारे में जानते हैं, तीसरे के बारे में क्या ख्याल है? रूसी सफीर कहता है कि नई हुक्मरानी कायम होने के बाद मुख्तलिफ कौमियतों के लोगों को जमा करके और बैनुल अक़वामी मुआहिदों को कबूल करके एक सिविल तंजीम बन जाएगी। आइन के मुताबिक एक ही कौमियत के हामिल अफराद इसी इलाके में रहेंगे और इलाके को कौमों के मुताबिक मुनज़्ज़म किया जाएगा। सुल्तान फरमाते हैं अहमद जलालुद्दीन पाशा, मैंने सुना है कि पाया तख्त में गुलामों की गैर कानूनी नीलामी हो रही है। पाया तख्त के अमीर तरीन लोग इसमें शरीक हैं, चले इन्हें सहरा में आजाद कर दें। अहमद पाशा कहते हैं जैसे हुक्म सुल्तान आपका। फिर सुल्तान फरमाते हैं तो आप कहते हैं सफीर आफंदी कि हमें ईसाइयों को एक इलाके में और दूसरे इलाके में मुसलमानों को जमा करने की जरूरत है।
अगर आप चाहें तो हम ऐसा कर सकते हैं। हम रोमेलिया में तमाम मुसलमानों को भेज सकते हैं जहां से वो कूनिया आए थे। तो पूरी रोमेलिया में ईसाई आबादी है। सफीर अफंदी, उस्मानिया में सिर्फ एक किस्म के लोग हैं और वो हैं उस्मानी। हम अंग्रेजों की ख्वाहिश से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं होने देंगे। सफीर कहता है कि सुल्तान अंग्रेजों का इससे क्या वास्ता है। सुल्तान फरमाते हैं ये अंग्रेजों का मंसूबा है रियासत को कौमों में तकसीम करना। फिर भी मत भूलना ऑस्ट्रिया और रूस दोनों ही एक सल्तनत है। आज जो कुछ हमारे साथ किया जा रहा है वो कल आपके साथ भी होगा। अंग्रेज आप लोगों के लिए भी मंसूबे बना रहे हैं, वो इससे मुनाफा कमाएंगे। यकीनन आपका मकसद बल्कान के लोगों को भी मुश्तइल करना है और इन्हें हमसे अलग करना है। लेकिन बल्कान एक ऐसा ही बैरल है जिसमें बम है, इससे वो तबाह हो जाता है जब आग लग जाती है। आपको लगता है कि आप अपने साथ ले जाने वाली मिशेल से रोमेलिया को रोशन करेंगे, लेकिन आपको मालूम ही नहीं कि आप बारूद से भरी हुई सुरंग में दाखिल हो रहे हैं। हम एक साथ गुलामों की नीलामी पर जाएंगे, तैयार हो जाओ। दूसरी तरफ अहमद जलालुद्दीन सोगोतलू उस्मान के पास पहुंचते हैं। वो कहता कि हमारे सुल्तान गुलामों की नीलामी में जा रहे हैं। उस्मान कहता कि तब ऑपरेशन बका के लिए होगा। अकबा का मतलब है कि गुलामों को आजाद करना। अहमद जलालुद्दीन कहते हैं कि सुल्तान ने महीनों कबल हमें अहकामात दिए थे, लेकिन वो पार्टी जिसको अकबा जाना था वो जालिम लोग निकले। उस्मान कहता कि पाशा हम गैर रिवायती जंगी ताकतों के साथ कार्रवाई जारी रखेंगे। हम नहीं जानते कि वो कौन है, लेकिन और कौन है जो इन्हें खास बना देता है। अहमद कहता कि हम नहीं जानते और वो भी नहीं जानते कि हम कौन है। उस्मान कहता तो अंग्रेज मरसदीक मुआहदे में शामिल होंगे, इसीलिए सुल्तान ने अकबा का हुक्म दिया। अहमद जलालुद्दीन कहते हैं कि हम अंग्रेजी पर ऑस्ट्रिया और रूसियों के लिए अपना रद्द अमल जाहिर करेंगे। उस्मान इन गैर रिवायती जंगी कुव्वतों को एक कोड टेलीग्राम अरसाल करें, इन्हें फौरन ही ऑपरेशन शुरू करने दें। फिर उस्मान जल्दी से टेलीग्राम भेजने लगता है। मंजर पलटता है, अकबा के सहरा दिखाए जाते हैं। फिर वहाँ पर खेमे में एक नए लिबास की कौमियत को दिखाया जाता है। एक सिपाही उसके पास आता है और कहता है कि आफंदी, हम उस्मानी टेलीग्राफ लाइन में दरअंदाजी करने में कामयाब रहे हैं। हमने कोड हल कर लिया है। अब्दुल हमीद ने अकबा में अपनी यूनिटों को हम पे हमला करने का हुक्म दिया। फिर सरदार कागज लेकर झोपड़ी में दाखिल हो जाता है। वो अंदर जाकर कहता कि कमांडर अशरफ अजीज, और कागज उसके मुंह पर फेंक देता है। कमांडर अशरफ कहता तो आपको खबर मिली। पहला शख्स कहता कि हम जानते हैं कि आप यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मकामी लोगों को मुनज़्ज़िम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इन्हें फौजी और कारकुन बनाना चाहते हैं, हम ये भी जानते हैं। कमांडर अशरफ कहता है कि मुहिब वतन लोगों के बारे में बात करना छोड़ दें और मुझे बताएं कि उन्होंने आपको कितने पैसे दिए हैं जो आपको खरीदते हैं गद्दार कुत्ते। पहला शख्स कहता कि अशरफ अजीज, मुझे खरीदने के लिए इतनी रकम नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी जगह का किराया मिलता है। ये झंडा जो आपने ऊपर देखा वो मेरे कबीले का झंडा है। किसी दिन ये इन जमीनों पर छा जाएगा, क्योंकि हम अकबा और सहरा के मालिक हैं। हमारी जमीनों में आपके लिए जगह या अमन नहीं है। आपका अब्दुल हमीद सिर्फ एक सहरा को मट्टी में बदल सकता है। अशरफ अजीज कहता कि हर राज आप एक लंबे अरसे से तकलीफ में हैं, आप हवा को शिकस्त नहीं दे सकते। हराज कहता कि आपके अब्दुल हमीद ने जिस कमांडर को हुक्म दिया वो मेरा कैदी है और वो ये नहीं जानता है। ये सहरा कमजोरी को खत्म नहीं करते हैं, वो आपको सहराई तूफान की तरह मारते हैं और इससे पहले कि आपको मालूम हो जाए आपके फेफड़ों में रेत भर जाती है। अशरफ अजीज कहते हैं कि हम सहरा के मालिक हैं, हम सहरा में तूफान हैं, लेकिन मैं तुम्हारे फेफड़ों को रेत के बजाय खून से भर दूंगा। वो झंडा आपका और आपके साथियों का कफन होगा, मैं कसम खाता हूँ। हर्राज कहता कि इर्द गिर्द देखो, आपके पास कुछ भी नहीं है, तुम कहाँ खड़े हो क्योंकि मैंने तुम्हें पकड़ा था। चलो मुझ पर हमला करो, अगर आपके पास ये सहरा है तो इसकी हिफाजत करें। अशरफ अजीज कहते हैं क्या आपने मुझे पकड़ लिया या मैंने आपको इसकी इजाजत दी। हर्राज कहता कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया, कोई मुझे कुछ करने की इजाजत नहीं दे सकता।
अशरफ अजीज कहते हैं मैं पहले ही कर चुका, मैंने आपको इजाजत दी क्योंकि आखिरी लम्हे में अपने दुश्मनों से आमने सामने बात करने में बहुत राहत मिलती है। सबसे ज्यादा सच बेहतरीन गुफ्तगू वहाँ की जाती है। मैं आपको मशवरा देना चाहता हूँ कि इसे जहन में रखें, लेकिन आपको इसकी जरूरत नहीं होगी। हर्राज कहता कि अब कोई बात नहीं अशरफ अजीज, बस मुझे ये बताओ कि आपके सिपाही कहाँ हैं। अशरफ अजीज कहता है कि आप कहते हैं कि आप सहरा के मालिक हैं, आप सब कुछ जानते हैं जो सहरा में होता है। अगर आपको ये मालूम नहीं हो सकता कि मेरे आदमी कहाँ हैं तो आप मर जाएंगे। हर्राज कहता कि हाँ, मैं अशरफ अजीज की मौत बनूंगा। अशरफ अजीज कहते हैं कि दरअसल आप मर जाएंगे अगर आपको मालूम हो जाएगा कि वो कहाँ है। हर्राज परेशान होकर कहता है कैसे? अशरफ अजीज कहते हैं आप समझ जाएंगे, हम पैगाम रसा कबूतर का इंतजार कर रहे थे, हम हमले के लिए अपने सुल्तान के टेलीग्राफ का इंतजार कर रहे थे। फिर अशरफ अजीज एक सीटी बजाते हैं। इसके बाद रेत से बहुत से आदमी बरामद होते हैं और वो उठते ही बंदूकों से हमला कर देते हैं। हर्राज खेमे से बाहर देखता है तो अफरा तफरी मची होती है और उसके तमाम लोग कत्ल किए जा रहे होते हैं। फिर हर्राज और अशरफ अजीज की खेमे में लड़ाई शुरू हो जाती है और बाहर हर्राज के तमाम आदमी फायरिंग की जद में होते हैं। इसके बाद हर्राज संदूक से बहुत सी सोने की थैलियां निकालता है और कहता है कि ये ले लो, अगर आप चाहते हैं तो और भी हैं, बस मेरी जान बख्श दो। अशरफ अजीज थैली लेकर उसका मुंह खोलते हैं और उसे हर्राज पर ही पलटा देते हैं। अशरफ अजीज कहता है कि मौत रिश्वत नहीं लेती हर्राज। फिर हर्राज अशरफ अजीज को गिरेबान से पकड़कर खड़ा करते हैं और कहते हैं कि जो भी अपनी जमीन सोने के एवज बेचता है, इसके पास मरने के बाद दफन होने के लिए कोई जमीन नहीं होगी। फिर अशरफ अजीज हर्राज की मजीद पिटाई करते हैं और आखिर में पिस्तौल लेकर उस पर फायर कर देते हैं। उसका झंडा उतार कर उसके मुंह पर फेंक देते हैं। फिर अशरफ अजीज बाहर आकर हर्राज के बाकी बच जाने वाले मुहाफिजों को भी कत्ल कर देते हैं। इसके बाद अशरफ अजीज ऐलान करते हैं कि गोलियां मत चलाओ। इसके बाद हर्राज का आदमी राइफल लेकर अशरफ अजीज पर तान लेता है, लेकिन उसे वो चलानी नहीं आती। अशरफ अजीज कहते हैं कि अगर आप अंग्रेजी बंदूक लेते हैं तो आपको इसे इस्तेमाल करने का तरीका जानना होगा, लेकिन वो आपको नहीं सिखाएंगे। फिर अशरफ अजीज उसे भी कत्ल कर देते हैं। फिर अशरफ अजीज मरने वाले डाकुओं के चेहरों से निकाब हटाते हैं और कहते हैं कि अंग्रेजों ने न सिर्फ हथियार भेजे बल्कि खुद भी यहाँ आए। फिर अशरफ अजीज कहते हैं कि मेरे शेर नौजवानों, नाकाबिले शिकस्त रहना। फिर वो अपने आदमी को कहते हैं कि जख्मियों को करीब तरीन डॉक्टर के पास लेकर जाएं, टेलीग्राम लाइन को महफूज करें और सिफारत खाने को आगाह करें कि हमने अकबा में अंग्रेजों से ताउन करने वाले डाकुओं को रोक दिया है। अकबा अब हमारा है, सारी दुनिया को ये जानने दो। हमारी रियासत रेलवे की तामीर करने जा रही है, हम सब का मंसूबा बर्बाद करने वाले हैं। अंदर सोना है हुसैन, ये हमारा हक है, हमारा माल गनीमत है, इसे ले लो और जरूरतमंद लोगों में बांट दो और अंदर जो आदमी पड़ा है इसे बहरे अहमर में फेंक दो। हुसैन कहता जो कमांडर हुक्म आपका। इसके बाद पाया तख्त में एक नौजवान दरसगाह में लोगों को लेक्चर दे रहा होता है। वो कहता कि ये मजबूत आदमी जिसे आप मेरे साथ देखते हैं वो मोरितानियाई अदरान है। ये अंग्रेजी, फ्रांसीसी और जर्मन जबान में रवानी रखता है। वो कोई भी काम संभाल सकता है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसे अपना बग्गीबान या अपनी गाड़ी का घोड़ा बना सकते हैं। ये आपका माली है, लेकिन सबसे बेहतर ये है कि इससे वो काम करवाया जाए जिसके लिए ये है। मैं 1500 से नीलामी का आगाज करता हूँ। फिर एक शख्स 1600 कहता है, एक और शख्स 1800 की बोली लगाता है, एक और शख्स 1850 की बोली लगाता है। ताजिर कहता है मैं इसे बेच रहा हूँ और ये बिक गया है। जिस जगह पर बोली चल रही होती है उसकी दूसरी मंजिल में सुल्तान हजरत तशरीफ फरमा होते हैं। रूसी सफीर तहसीन पाशा भी उनके साथ मौजूद होते हैं। वो इस बोली को खुद सुन सकते हैं। सुल्तान फरमाते हैं अंग्रेज और फ्रांसीसी नौआबादियात से इनको लेने के बाद वो इन लोगों को अशिया की तरह बेच रहे हैं। जब तक निकाब नहीं उतर जाते मगरबी रियासत की यही हालत रहेगी। और नाजरीन, इस तरह से इस एपिसोड का यहाँ इख्तिताम हुआ।